ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਤੀਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਨ ਅ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਏ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਐਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ SAS ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR, ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ P ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ A 60 ਹੈ ਤਾਂ P ਵੀ 60 ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗੀ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ P, ਈਚ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ B ਐਂਗਲ Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ Q, ਈਚ 80 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਐਂਗਲ C ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ R, ਇਹ ਕਿੰਨਾ, ਈਚ 40 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ, ਇਹ 60 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ P, B ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 80 ਹੈ, ਇਹ ਆਏਗਾ Q, ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ R, ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਈ AAA ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ 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 ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR। ਦੇਖੋ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, AB बटा RQ या QR, ए वाली साइड बटा ए वाली साइड कितनी होगी, 2, ए हैगी है 4, ए आ गई 1/2, ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूजा AC, ए वाली मैनू पता है 3 नू जे मैं 6 दे नाल डिवाइड करांगी यानी PQ दे नाल डिवाइड करांगी, वो भी मैनू 1/2 ही देगा, ठीक है जी। ये आ गया दूजा। ते तीजी साइड रह गई, देखो जे मैं डिवाइड करदी हाँ BC यानी 2.5 हैगा, इनू डिवाइड करदी हाँ इहदे नाल PR दे नाल, कितना है 5, ठीक है। ये डेसिमल हटाया 50 बन गया, ये भी कटिंग करके 1/2 आ जाएगा, ये तीजा। हुण तीनों 1/2 आ रहे ने रेशोज जिहड़ियां हैगियां साइड्स दी, इस हिसाब नाल मैं लिखियां ने, ठीक है जी। ते मैं लिख सकदी हाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC is similar to triangle QRP। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ AB ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ QR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ AB ਇੱਥੇ QR ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਬਾਈ SSS, ਸਿਮਿਲਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ SSS ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ क्राइटेरिया। अगे चलते हैं तीजे पार्ट दे विच दो ट्रायंगल्स ने, आप लिखते हैं इन ट्रायंगल LMP एंड ट्रायंगल DEF। देखो ये विच MP डिवाइडेड बाय DE लेके देखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2/4, 1/2। उवें ही PL ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ए वाली साइड 3 बटा ए आ जाएगा DF, ठीक है जी, बटा 6 ए आ गया 1/2। अखीरली साइड बची है LM
2.7 बटा इधरले पासे बची है साडे कोल EF, ये हैगी है 5, डेसिमल हटाया 50 आ गया। ये 27/50 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होएगा। हुण तीनों आपस दे विच बराबर नहीं हैगी रेशोज, देयरफॉर आपां कहांगे टू ट्रायंगल्स या ट्रायंगल LMP and triangle DEF are not similar। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ MNL ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ML ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ML ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ QR, 5/10 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਫਿਰ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ M इज इक्वल टू एंगल Q, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ईच 70 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। फिर साडे कोल साइड हैगी है MN बटा PQ, 2.5 बटा 50, डेसिमल हटाया 0 आ गया, ये आ गया 1/2। ਤੇ देखो साइड एंगल साइड, ਇੱਥੇ भी साइड एंगल साइड, दो साइड्स ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ एंगल आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ट्रायंगल MNL। देखो एंगल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ एंगल ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ एंगल ਸੀ M, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ट्रायंगल ਦਾ Q, ਇਹ ਵਾਲਾ M एंगल Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ Q। ठीक है, N ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ P, क्योंकि मैं की किया MN साइड ਲਈ ਸੀ ਨਾ, बटा PQ लिया सी PQR। ये दोनों सिमिलर ने। क्राइटेरिया केड़ा है, बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DEF, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ AB 2.5 डिवाइडेड बाय DF, ये वाला विच इज 5, ये आ गया 25/50, 1/2। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਓ BC यानी A वाली ਜਿਹੜੀ साइड हैगी आ बटा EF, ये आ गया 3/6, 1/2। हुन दो साइड्स, ठीक है, ते एक एंगल है जे ਆਪਾਂ देखिए, पर वो एंगल बाहरले पासे हैगा ना, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ। ਐਂਗਲ A is 80 डिग्री, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗਲ F is 80 डिग्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SAS ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਗਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੀ because एंगल B is not equal to एंगल F। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, B ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ F ਦੇ ਬਰਾਬਰ। therefore triangle ABC and triangle DEF are not similar। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ triangle DEF, एंगल D 70 डिग्री, एंगल E 80 डिग्री, यही ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ एंगल कैलकुलेट ਕਰਦੇ ਹਾਂ। एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, एंगल F कितना हो गया, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 150। 180 ਮਾਈਨਸ 150, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 30 डिग्री। ठीक है जी, उवें ही ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेंगे दूजे ट्रायंगल का। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 80 डिग्री, एंगल R 30 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल 180 के बराबर हो जाते। ये आ गया साडे कोल एंगल P प्लस 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 80 दे विच 30 ऐड करोगे हो जाएगा 110। उधर ले जाओगे एंगल P की वैल्यू 180 माइनस 110, 70 डिग्री आ गया। ये आ गया थोड़े कोल 70 डिग्री। ठीक है जी, हुन इनू किवें सॉल्व करना मैं इत्थे लिख रही हूँ।
ए 70 70 ਦੇ ਬਰਾਬਰ एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री। ते तीजा एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल D दे सामने केड़ा P, E दे सामने Q, F दे सामने R ये सिमिलर हैगे ने। क्राइटेरिया केड़ा हैगा इत्थे आपां लिखांगे बाय ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगे चलते हैं दूजे क्वेश्चन दे विच दिता होया है ट्रायंगल ODC यानी ए वाली जिहड़ी ट्रायंगल हैगी है सिमिलर है OBA दे। OBA ये दोनों आपस दे विच सिमिलर हैगे ने। एंगल BOC आ दिता होया बाहर वाला एंगल 125, ए दिता होया CDO 70 डिग्री। आपां नूं लभना केड़ा केड़ा मैं दस दिंदी हां। एक आपां नूं लभना इहदे विच DOC यानी ए वाला एंगल लभना है, ठीक है। DCO ए वाला एंगल लभना है ते नाल दी नाल OAB ए वाले तीनों एंगल लभने ने, ठीक है। वो किवें लभांगे देखो इत्थे इहनूं सॉल्व करांगे। सब तो पहलां आपां लिखांगे सानूं गिवन की हैगा एंगल BOC 125, एंगल CDO 70 डिग्री। हुण देखो जे ये तुसी देख रहे हो DOB इदां करके एक स्ट्रेट लाइन हैगी है ते एक लाइन इनू इदां कट रही है। ये 125 डिग्री का एंगल है। सीधी लाइन का जिन्ने भी एंगल पैंदे ने उन्हां दा सम कितना हुंदा है 180 डिग्री। ये 125 दिता होया ये वाला एंगल निकल जाएगा जो आपां कढना है लाल वाला, ठीक है जी। वही मैं इत्थे लिख रही हूँ DOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इत्थे आ जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम 180 होएगा। कारण की है लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन ते। ये आ गया एंगल DOC प्लस 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 55 डिग्री हो गया। हुण जे ए 55 डिग्री हैगा ए वाला, ठीक है, यानी ए वाला एंगल, ताकि मैं कह सकती हाँ ए वाला थल्ले दे वो भी 55 होएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हैगे ने। वही मैं इत्थे लिख रही हाँ एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 55 डिग्री। कारण की हैगा क्योंकि ए हैगे ने जी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ मैं लिख के सॉल्व करांगी। ਇਹ आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 55 दोनों। ਹੁਣ बाकी मैं ਇੱਥੇ लिख रही ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ क्वेश्चन दे विच ही वी ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। यानी कि ये दोनों आपस दे विच 55 हो गए, ठीक है। ते आपां ये कह सकते हैं फिर एंगल D जिहड़ा हैगा ओ दे बराबर हो गया। D किहदे बराबर होएगा B दे बराबर। एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ये आ गया 70 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 70 डिग्री प्रूव हो गया। चलो हुण आपां ट्रायंगल ले लेंदे उत्ते वाला। इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल O प्लस एंगल C 180 डिग्री दे बराबर। एक 70 डिग्री एक हैगा 55 डिग्री। एंगल C कैलकुलेट करांगे, ठीक है। हुण जे तुसी 70 दे विच ऐड करदे हो 55 तां तुहाडे कोल आ जांदा 125 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ते आपां कह सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 125 ये तुहाडे कोल आ जाएगा 55 डिग्री। हुण जे C 55 आ गया ते A भी कितना आ जाएगा 55 क्योंकि आपां ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री। हुण पूरा करके लिख दो जो जो उन्होंने पूछे। DOC एंड दे विच तुसीं लिखोगे इत्थे एंगल DOC इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया DOC ए सीगा साडे कोल 55। फिर एंगल DCO ए जो पूछया वो करके लिखना है ए भी 55 ते अखीर दे विच OAB ए भी कितना है 55 डिग्री। अगे चलते हैं तीजा क्वेश्चन।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਇਗਨਲਸ AC ਐਂਡ BD ਆਫ ਅ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ABCD, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ABCD। क्यों नाम दिता इदा? क्योंकि उन्होंने AC डायगनल दसी है, एक A डायगनल हैगी है, एक BD डायगनल हैगी है, ठीक है। ऑफ अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू A वाली साइड ਇਹਦੇ पैरेलल हैगी है, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूजे ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है, पॉइंट O ਤੇ ਮਿਲਦੀ है। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स शो करना है, एक की शो करना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि OA बटा OC इज इक्वल टू OB बटा OD। ये चीज़ तुसी प्रूव करनी है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ मैं किवें सॉल्व करदी हां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। देखो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ सॉल्व करांगे, ਇੱਥੇ मैं लिखांगी इन ट्रेपीजियम ABCD, AB is parallel to CD एंड तुसी ये पूरी चीज़ लिखोगे गिवन दे विच, ये पूरा ਇੱਥੇ तक पॉइंट O तक, फिर तुसी ये चीज़ लिखोगे ट्रू प्रूफ दे विच, ये वाली चीज़, ठीक है। इन्ना लिख सकते हो। हुन जब तुसी इन्ना लिख लोगे, ये लिखना जरूरी है, गिवन, टू प्रूफ, ये सारिया चीज़ां। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ DC ਦੇ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ठीक है। हुण आपां लै रहे हैं ट्रायंगल DOC, ये वाला जिहड़ा उत्ते वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल DOC ते थल्ले BOA, ठीक है। इत्थे मैं नाम दे रही हां एंगल्स नूं। मान लो तुसी ये वाला एंगल लै रहे हो 5, ये आ गया 6, इनू लै लो 2, ये आ गया 1, इनू लै लो 3, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ ਐਂਗਲ 1 ਤੇ ਐਂਗਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 2, ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 6, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ एंगल्स। ते एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी Z दे विच बन रहे हैं, जो तुसी ध्यान नाल देखो, एक इत्थे ते एक इत्थे, ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ठीक है। ते देयरफॉर D दे सामने केड़ा आएगा, जे मैं लिख रही हां ट्रायंगल D सिमिलर है ट्रायंगल D दे सामने B, D O दे सामने O, ते इत्थे C दे सामने A। आपस दे विच सिमिलर क्यों हैगे ने? क्राइटेरिया की है AAA, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे सिमिलर हैगे ने फिर मैं कह सकती हाँ ये आ जाएगा बराबर OC बटा OA, क्योंकि जे एंगल सिमिलर हैगे ने तो उन्हां दी साइड्स की होणगियां प्रोपोर्शनल होणगियां। इत्थे मैं पूरा कारण लिख रही हाँ, इफ ये लिखना है तुसी, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, देयरफॉर corresponding sides are proportional, ठीक है जी। कुछ नहीं किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, A ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, OD ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, OA बटा OC is equal to BO, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ बटा DO, ठीक है, hence proved। एक्सचेंज ही की है पोजिशंस। अगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन दे विच दिता हुआ ये वाला फिगर हैगा QR, यानी दिस पूरी साइड बटा QS, ये अद्धी साइड इज इक्वल टू QT बटा PR, QT बटा P ते R, ए वाली साइड आ रही है, ठीक है। ते एंगल 1 ते एंगल 2 बराबर है, असी शो करना है भी ये जिहड़े ट्रायंगल्स हैगे ने PQS, ये सिमिलर हैगा टू ट्रायंगल TQR, TQR, ये वड्डे वाले दे सिमिलर हैगा।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂਗੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਇਨ ਟਰਾਇੰਗਲ PQR, PQ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ R, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ, ਜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਨੀਅਰ ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਗਲ 1 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਐਂਗਲ 2 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ देयरफॉर ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਸ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। PR is equal to PQ, ਕਿਉਂਕਿ equal angles have equal sides opposite to them, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ A ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, यानी कि QR बटा QS इज इक्वल टू QT बटा PR। ये की है गिवन दे विच, ठीक है। मैनू पता है PR जिहड़ा है वो किदे बराबर है, PQ दे। चेंज कर दांगी इत्थे ते इत्थे लिखांगी QR बटा QS इज इक्वल टू QT बटा PQ। कारण की है, PR इज इक्वल टू PQ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ QS ਬਟਾ QR ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ PQ ਬਟਾ QT। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQS ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ TQR। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, PQS ਤੇ ਦੂਜਾ TQR ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ 1 ਕਾਮਨ ਹੈ, ठीक है। मैं हुणे की प्रूफ किया है, मैं ये प्रूफ किया है कि QS बटा QR, जो मैं थले लिखे है ये चीज, QS बटा QR इज इक्वल टू PQ बटा QT ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤੀ, ਐਂਗਲ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਗਲ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ 1 ਕਾਮਨ, ठीक है। ये चीज प्रूफ होगी। देयरफॉर आप कह सकते हैं ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। क्राइटेरिया की है SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, हेंस प्रूव्ड। आगे है S and T are 2 points on side PR and QR। सब तो पहला ऐदा करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ PQR, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ P, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ Q, ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਓ R। S ਤੇ T ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ PR ਤੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ S, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ T, ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਂਗਲ P ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ P इस बराबर इक्वल टू RTS, ये बराबर है। तुसी शो करना है भी ट्राइंगल RPQ बड़े वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, वो सिमिलर है RTS ते, ये सिमिलर है। सिंपल वही गल। टू प्रूफ ये लिखोगे, ठीक है। प्रूफ दे विच तुसी लिखोगे, देखो इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल RPQ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ एंगल है बराबर ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ RTS ਦੇ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ एंगल R ਦੇ ਬਰਾबर है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, कॉमन एंगल, ठीक है जी। देयरफॉर जे दो एंगल बराबर ने तो ये S वाला भी
क्यू दे बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख रही हाँ एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। कारण की आएगा इत्थे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी, इदा सॉल्व करना है। अगे दिता होया 6वां क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ABE एक कॉन्ग्रुएंट है, इदा लिखिया कॉन्ग्रुएंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ਜਿਹੜੇ पार्ट्स ਹੈਗੇ ਨੇ बराबर ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ बराबर ਹੈਗਾ ACD ਦੇ यानी ਇਹਦੇ। ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ADE ਇਹਦੇ सिमिलर हैगा, ये प्रूव करना है। देखो सिंपल, पहला तुसी गिवन दे विच की लिखोगे ये चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ये गिवन दे विच आ जाएगी। टू प्रूफ दे विच ये वाला पॉइंट आ जाएगा। हुण मैं इत्थे लिख रही हां प्रूफ। मैनू गिवन है ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये चीज मैनू गिवन हैगी है, कह सकते हैं जिहदा मतलब ए हैगा जद गिवन हैगी है तो मतलब जे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैगे ने तो कहांगे AB। देखो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ने इहदा मतलब AB किहदे बराबर हैगा AC दे, जिन्हों आपां कहंदे आ CPCT। ठीक है। हुण जद आपां ट्राइंगल्स की गल कर रहे हुंदे आ, कॉन्ग्रुएंसी की गल कर रहे हुंदे आ, तो इहदे विच जिहड़ा कॉन्सैप्ट आंदा वो आंदा CPCT, जिहदा मतलब ए हुंदा है, मैं इत्थे लिख दिंदी हां corresponding parts of congruent ट्रायंगल्स। मतलब जे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ने उन्होंने सामने वाले जेडे हिस्से हैगे ने वो भी बराबर ने, ए भी बराबर होएगा AC दे। ठीक है। ते आपां ये कह सकते हैं, सॉरी AB नहीं है, हाँ ABE ट्रायंगल है। ठीक है। ते आपां कह सकते हैं भी AE वो बराबर हो जाएगा इत्थे दे AE दे बराबर, AD दे, AB बाय CPCT। हुण जे इनू यूज करिए AB AC थले लै जाए इक्वल टू 1 दे बराबर हो गया। ठीक है। तो इनू जे मैं लिखना है AE बटा AD, ये भी 1 दे बराबर हो गया। ठीक है। हुण ये दोनों 1 1 दे बराबर है तो इक्वेशन 1 एंड 2 आपस दे विच बराबर हो जाएंगे। AB बटा AC इज इक्वल टू AD बटा AE कह सकते हैं। हुण जे रेशो बराबर हैगी है साइड्स दी ते आपां ये कह सकते हैं एंगल A इहदे विच ए वाला कॉमन हैगा तां जिहड़े ट्रायंगल्स ने की हो जाएंगे सिमिलर। तो ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC ये चीज जिहड़ी हैगी है इनू मैं इदां लिख सकदी हां। देखो ए वाली चीज नू AD बटा AE ये पहला लिखता इज इक्वल टू AB बटा AC। ठीक है। की हैगा AD बटा AE इज इक्वल टू AB बटा AC। एंगल ए कॉमन हैगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्राइटेरिया केड़ा बाय SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी। अगे हैगा 7वां क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਆਲਟੀਟਿਊਡਸ AD, ਇੱਕ ਇਹ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਤੇ CE ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਈਚ ਅਦਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ। ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AEP ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ इज सिमिलर टू CDP, ये सिमिलर है। पहला आप पहले पार्ट नू करिए। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, मैं इत्थे सॉल्व कर दिनी आ, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ये कह सकती हूँ भी एंगल E ए वाला ते एंगल D ए वाला दोनों 90 हैगे ने। ठीक है ना, क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैगे ने। एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक पासा 90 बनया दूजा भी 90 हो जाएगा। ठीक है। प्लस ए वाला जेड़ा एंगल है
ए पी एंगल ए वाला ते इधरले पासे ए वाला, इधर ए या रेड दे नाल मार्क कर दिया, ए वाला ते ए वाला ऑपोजिट हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट, यानी एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी पी। कारण की है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हुण दो एंगल्स बराबर है कि नहीं, तो आप कह सकते हैं बाय ए सिमिलैरिटी, ए जिहड़ा हैगा इहदे सी डी पी दे सिमिलर हैगा बाय ए सिमिलैरिटी। ठीक है जी, इन्नी गल क्लीयर होगी। अगे चलते हैं सैकेंड पार्ट दे विच की प्रूफ करना है। इहदे विच हैगा ट्रायंगल ए बी डी, यानी ए बी डी, ए वाला जिहड़ा ट्रायंगल हैगा ये सिमिलर हैगा टू सी बी ई, ए वाले ट्रायंगल दे। ठीक है, किवें करांगे देखो, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ D ਤੇ ਐਂਗਲ E ਫੇਰ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, A ਤੇ A 90, ਐਂਗਲ D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਐਂਗਲ A ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ A ਕਾਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, देयरफॉर ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगे चलते हैं तीजा पार्ट। थर्ड दे विच के है प्रूफ करना है ट्रायंगल AEP, AEP ए वाला इज सिमिलर टू ADB, ADB ए बड़े वाले दे सिमिलर है। हुण इहनूं किवें प्रूफ करांगे देखो, इत्थे लिखांगी इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल E ਤੇ एंगल D दोनों 90 है। ठीक है, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ एंगल A इक्वल टू एंगल A ਕਾਮਨ। देयरफॉर ਇਸੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ट्रायंगल AEP is similar to ट्रायंगल ADB। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ A सिमिलैरिटी करके बराबर ने। ठीक है, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ फोर्थ पार्ट ਦੀ। फोर्थ पार्ट दे विच कहा गया है PDC यानी P ए वाला DC सिमिलर टू BEC ए वाले दे वड्डे वाले दे। किवें करांगे देखो, दोनों विच कॉमन हैगा इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, एंगल C इक्वल टू एंगल C, दोनों विच की हैगा कॉमन कह सकते हैं, है ना। आ देखो एंगल C दोनों विच कॉमन आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल दे विच भी ते आपां ये कह सकते हैं वड्डे वाले ट्रायंगल दे विच भी, दोनों विच दिखाई दे रहा है सानू ए वाला एंगल C। ठीक है, दूजी गल एंगल D इक्वल टू एंगल E, ते ए बराबर हैगा 90 डिग्री। देयरफॉर आपां कह सकते हैं ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। सेम वही क्राइटेरिया इत्थे लिखांगे AA सिमिलैरिटी करके। ठीक है जी, उवें ही 8वां क्वेश्चन आपां प्रूफ करना है। इत्थे विच आपां पहला एक डायग्राम ड्रॉ करांगे ते फिर इहनूं प्रूफ करांगे। की दिता होया इहदे विच दिता होया VE is a point on side AD produced parallel to पैरेललोग्राम ABCD। सब तो पहला आपां एक पैरेललोग्राम बना लेंदे हां। ठीक है जी, ये बना लिया मैं पैरेललोग्राम। हुण ये जिहड़ा पैरेललोग्राम हैगा थल्ले थोड़ा जिहा खिसका दिंदी हां। इहदे विच कहा गया A B C ते D हैगा। ठीक, हुण उन्होंने कहा E इज अ पॉइंट ऑन AD साइड ते E एक पॉइंट हैगा जिन्हों आपां प्रूफ बनावांगे किदा, इहनूं एक्सटेंड करके। ये एक्सटेंड कीता। ठीक है, ते फिर दोबारा तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, तुसी देखोगे इदा का कुछ की है। आ देखो मैं दिखा रही हूँ, E इज अ पॉइंट, E पॉइंट हैगा इत्थे ऑन साइड AD साइड ते प्रोड्यूस्ड पैरेलल
produced AD produced of a parallelogram ABCD and BE ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ BE ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ CD ਨੂੰ ਇੱਥੇ at point F ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABE ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ ਟੂ CFB ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABE ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ CFB ਇਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਗਲ A ਤੇ ਐਂਗਲ C ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ क्यों बराबर होंगे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैगे ने ऑफ अ पैरेललोग्राम इसे करके आपस दे विच बराबर होंगे हुन दूजी चीज एंगल ए बी ते ई यानी ए वाला जेड़ा एंगल हैगा ठीक है एंगल ए बी ई इज इक्वल टू सी एफ बी आ देखो जेड दे विच बन रहे ने एक ऐदा ते एक ऐदा एंगल CFB ऑल्टरनेट एंगल्स कह सकती है दो एंगल्स बराबर हो गए ठीक है क्योंकि दो एंगल्स बराबर हो गए आप कह सकते हैं ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये तो पहला जो फिफ्थ क्वेश्चन भी आपा कीता सी ना उहदे विच ए सिमिलैरिटी आएगी गलती नाल मैं ए लिखता सी इहदे विच सानू दिता होया फिफ्थ क्वेश्चन देख लियो एंगल RPQ इज इक्वल टू एंगल RTS एंगल R इज इक्वल टू एंगल R देयरफॉर ए सिमिलैरिटी करके आपा कह सकते दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैगे ने आगे चलदे हैं 9वें क्वेश्चन दे विच ए दस्सिया गया ए फिगर हैगा इहदा ए वाला ट्रायंगल ABC यानी ए वाला जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इससे 90 डिग्री एंगल हैगा ते दूजा जो ट्रायंगल उन्होंने दस्सिया AMP ए वाला ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैगे ने ठीक है एक राइट एंगल है B दे उत्ते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ M ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ABC ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ AMP ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ AMP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਂਗਲ A ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ ठीक है ते दूजी गल उन्होंने दिती हुई है एंगल M ते एंगल M ते एंगल B जिहड़े ने 90 डिग्री ने देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP क्राइटेरिया केड़ा AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पहला पार्ट प्रूव हो गया हुण B पार्ट दे विच ये प्रूव करना है कि AC बटा AP या PA इज इक्वल टू BC वटा MP हुण ये दोनों ट्रायंगल्स जिहड़े ने सिमिलर हैगे ने तां आपां कहांगे इन्हां दी जिहड़ी साइड्स हैगी वो भी सिमिलर होएगी ते इत्थे लिख दिंदी हां इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर corresponding sides are proportionate equal and proportional ठीक है जी कहने का मतलब आप कह सकते हैं भी AC बटा AP या PA इज इक्वल टू BC बटा MP क्योंकि AC बटा AP इज इक्वल टू BC बटा MP यही चीज कही है हैंस प्रूव्ड अगे चलते हैं 10th क्वेश्चन वाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ट्रायंगल्स बनाने पैने पहला आप दो ट्रायंगल्स बना देंगे फिर ये सॉल्व होएगा ठीक है जी ते एक ट्रायंगल ले लो ये ते एक होर ट्रायंगल ले लो इदां दा ए
ठीक है। एक होर बनाया जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं इदा करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, फिर समझावांगी की कहा गया। ते एक होर लाइन आएगी इत्थों लैके इत्थे तक। हुण मैं बनाते हुए एक्सप्लेन करती हाँ इन्होंने की कहा। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB यानी ACB। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C ਤੇ D ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਹੈ यानी इस एंगल ਨੂੰ दो बराबर हिस्सों में वंड रहे हैं। वन पार्ट A वाला एंगल इज इक्वल टू सैकेंड वाला एंगल। उवें ही GH मतलब G A वाला H A वाला एक ही कट रहा है EGF एंगल ਨੂੰ दो बराबर हिस्सों में यानी ये ते चार आपस दे विच बराबर ने। ठीक है। तो इत्थे दस्सिया भी ABC सिमिलर हैगा FEG दे ते आपां ये प्रूफ करना है भी इस जेहड़ी साइड्स हैगी एक तरीके दे नाल प्रोपोर्शनेट हैगियां ने। फिर दो ट्रायंगल्स होर सिमिलर प्रूफ करने ने यानी ए वाला जिहड़ा छोटा वाला ट्रायंगल है BCD वाला वो HGE दे बराबर है इहदे। ठीक है। DCB वाला जिहड़ा हिस्सा है HGE दे बराबर हैगा ते दूजी चीज ए वाला जिहड़ा हैगा DCA ए बराबर हैगा HFG दे बराबर। ये चीज प्रूफ करनी है। सब तो पहला उदा ही सॉल्व करांगे, जो गिवन है वो लिखोगे। ठीक है। टू प्रूफ दे विच पहला ए लिखोगे। ठीक। हुण इहनूं किवें सॉल्व करांगे, मैं इत्थे लिख रही हां प्रूफ। मैनूं दिता होया ट्रायंगल ABC सिमिलर हैगा ट्रायंगल FEG दे। देखो किहड़ी साइड मतलब ए दे बराबर F होएगा। ठीक है। ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ प्रूफ कर सकते हैं एंगल A किहदे बराबर है, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ एंगल F ਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ B किहदे बराबर होएगा एंगल E दे। एंगल C इक्वल टू एंगल G कह सकते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इत्थे कारण लिख रही हूं द कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैगे ने ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स वो की हुंदे ने इक्वल। ठीक है जी, ये गल आ गई। देयरफॉर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ एंगल C ਜਿਹੜਾ है ये पूरा एंगल ये एंगल G ਦੇ बराबर होएगा। एंगल C इज इक्वल टू एंगल G उत्ते प्रूफ करता ये वाला। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ एंगल है हाफ ऑफ एंगल C वो भी तो हाफ ऑफ एंगल G ਦੇ बराबर। जे पूरा बराबर है अद्धा अद्धा भी बराबर होएगा। जे अद्धा अद्धा बराबर है तो की मैं कह सकती हाँ ए वाला एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 दे ते एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 3 दे, क्योंकि पूरे आपस दे विच बराबर हैगे ने। ते वही मैं इत्थे लिख रही हाँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 या तुसी कह सकते हो एंगल और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है जी। हुण इहनूं एक्सप्लेन करन दे लई इत्थे मैं लिख रही हाँ इन ट्रायंगल ACD ए वाला जिहड़ा हैगा AC ते D उत्ते वाला। ठीक है। एंड FHG या FGH थल्ले वाला ब्लू वाले मार्क वाले ब्लू दे नाल लिख दी हां। एंड ट्रायंगल FGH सानू पता है भी एंगल A आपां हुणे प्रूफ कीता उत्ते किहदे बराबर है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 एंगल किहदे बराबर प्रूफ करता एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है जी। ਕਿਹੜੀ सिमिलैरिटी लगेगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ सिमिलर हैगे ने दो एंगल्स बराबर ने ना तो ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है जी। ये तो प्रूफ हो गया। तो ये जे बराबर ने तो कि मैं ये कह सकती हाँ देखो ए वाली जिहड़ी साइड हैगी है जे दोनों बराबर ने ब्लू वाला ए ते ए बराबर ने तो हुण तुसीं सोच के दस्सिओ कि मैं कह सकती हाँ CD यानी ए वाला पार्ट CD बटा GH किहदे बराबर होएगा। आ देखो इट शुड बी इक्वल टू AC बटा FG। ये लिख सकती हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैगे ने ਉਹੀ प्रूफ करना है। पहला ए प्रूफ किया फिर उत्ते वाला प्रूफ होएगा। ठीक है जी।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ CD बटा GH इज इक्वल टू AC बटा FG। क्यों? क्योंकि एक ही हैगे ने corresponding sides are in proportion of similar triangles। ये कह सकते हैं। ठीक है जी। हुण वापस तो ये फिगर दे वाल आंदे हैं। ठीक है, ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ DCA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ HFG ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DCB, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ DCB ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। ठीक है जी, हुण मैं ए वाला कर रही हूँ, इस ट्रायंगल की गल कर रही हूँ, ए वाला। ठीक है, DCB ते HGE ए वाले दी एंड ट्रायंगल HGE। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, पहला प्रूफ करता, प्रूव्ड अबव। दूजी चीज सानू पता एंगल 1 एंगल 3 ਦੇ बराबर प्रूफ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ proved above। therefore triangle DCB similar to triangle HGE ਕਿਹੜਾ क्राइटेरिया AA similarity। ठीक है जी, फिर ए वाला हैगा DCA एंड HFG। हुण मैं वापस इनू हटा दिंदी हां, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ चेंज करके लिख देनी है ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HFG। ये वाला जिहड़ा हैगा यानी कि किहड़े दो ट्रायंगल्स हो गए DCA, पहला भी प्रूफ किया सी, इस बराबर हैगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ प्रूफ करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ एंगल A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ वो एंगल F ਦੇ बराबर है, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रूफ किया। ठीक है, दूजी गल एंगल 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ठीक है, वो किहदे बराबर है, ये वाला एंगल 2 कि मैं कह सकती हाँ इस दे एंगल 3 ਦੇ बराबर होएगा। वो किवें देखो एंगल 1 ते एंगल 2 बराबर ने, बाइसैक्ट करता है। ठीक है, ते इधर एंगल 3 ते एंगल 4 बराबर ने, पर सानू ये पता है एंगल 2 एंगल 4 दे भी बराबर है ते एंगल 1 एंगल 3 दे भी बराबर है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 दे भी बराबर है, 3 दे भी बराबर है, देयरफॉर एंगल 2 ते एंगल 3 बराबर हो गए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਮ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, AA ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ 11th ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ E is a point on side BC produced of an isosceles triangle ABC, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ, यानी AB साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾबर ਹੈਗੀ ਆ AC ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਣਾਇਆ E ਤੱਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ AD ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗਾ BC ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ यानी 90 डिग्री ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ A ਲਾਈਨ EF ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈਗੀ ਹੈ AC ਤੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रायंगल ABD, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल ਹੈ ABD ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ EFC ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਗਿਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਫ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक ही हैगा गिवन हैगा। जे आइसोसेलेस हैगा यानी ये दसिया AB साइड AC दे बराबर है। ठीक है, जे ए ट्रायंगल है ए साइड ए दे बराबर है तो फिर ए वाला एंगल ए दे बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से ऑपोजिट एंगल ए दे बराबर ए वाला एंगल ए दे सामने ए वाला एंगल आपस दे विच बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर आपां कह सकते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल B ते एंगल C बराबर हो जाएंगे। दोबारा दस दिनी है,
देखो ए साइड ए बराबर है, देयरफॉर ए वाला एंगल ए बराबर हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कारण की देना है इत्थे, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इट या ऑपोजिट टू देम। ठीक है, हुण मेरे कोल बी ते एंगल सी आपस दे विच बराबर हो गए। हुण वो दो ट्रायंगल्स की गल करते हैं जिथे इन्हां ने गल कीती हुई है, जिहदी किहड़े दो हैगे ने, इत्थे लिख रही हां, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है जी, हुण इहनूं इरेज कर दिंदे हां, ए दे बराबर है, लाल दे नाल भी बना दिंदी हां। ठीक है, हुण इहदे विच एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ उत्ते प्रूव करता आपां, बी ते सी बराबर हैगा, प्रूव्ड अबव। ते जिहड़ा बी वाला एंगल है ते एफ वाला एंगल दोनों 90 डिग्री है, गिवन हैगा। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। क्राइटेरिया केड़ा है, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगला है 12वां क्वेश्चन, साइड्स ए बी एंड इत्थे ना क्वेश्चन कई बुक्स दे विच BC की थां ते आपां इहनूं AC लैके चलते हैं। ठीक है, ते इत्थे QR की थां ते आपां PR लैके चलते हैं। ठीक है, ये जिहड़ी फिगर हैगी है ये दित्ती हुई है, इत्थे दस्सिया होया भी जिहड़ी साइड हैगी आ AB बटा PQ वो बराबर हैगी आ AC बटा PR दे, ते अगे वो फर्दर बराबर हैगी है जिहड़ी मीडियन हैगी है इहदे विच, यानी AD बटा PM दे। आपां प्रूव करना है कि ये जिहड़े वड्डे वाले ट्रायंगल्स हैगे ने, ए वाला ट्रायंगल ते ए वाला ट्रायंगल आपस दे विच सिमिलर हैगा। ठीक है, ये जिहड़ी चीज़ है जो मैं तुहानूं हुणे दस्सी वो मैं इत्थे लिखता AB, ए वाली साइड बटा ए वाली साइड बराबर है ए वाली साइड बटा ए वाली साइड बटा ए वाली साइड मीडियन ते ए वाली साइड। हुण इहदे विच मैं थोड़ा जिहा कंस्ट्रक्शन करन जा रही हां। कंस्ट्रक्शन किवें कीती जाएगी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AD ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, AD ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ AD ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ AE ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, AD ਤੇ AE ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ PM ਤੇ MN ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, PM ਤੇ MN ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ AD ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ BD ਤੇ CD ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਗਨਲਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ, ਇਹ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ABEC ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਬਰਾबर है, तो डेफिनेटली ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ BE ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, AC ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ QN ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ PR ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ BE ਹੈ ਉਹ AC ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ QN ਬਟਾ PR ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, BE ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ, QN ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈ, AC ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਬਟਾ PR। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ AB ਬਾਈ PQ ਉਹ AC ਬਾਈ PR ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AC ਬਾਈ PR, AC ਬਟਾ PR ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ AC ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, AC ਬਾਈ PR। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ।
जे ये दो सिचुएशन दोनों के बराबर है यानी ये दोनों आपस दे विच बराबर हो गई है। ठीक है, उवें ही जेड़ा साडे कोल ए वाली इक्वेशन हैगी है ए बी बाय पी क्यू, ये किहदे बराबर है, इहदे बराबर हैगी है। ठीक है ना, ए वाली जिहड़ी चीज हैगी है ए बी बाय पी क्यू वो इहदे बराबर हैगी है ना, ਉਹੀ मैं इत्थे लिखता। ठीक, हुण इहदे विच मैं की कीता, उत्ते भी 2 नाल मल्टीप्लाई करता, थल्ले भी 2 दे नाल, तां ये इक्वेशन आ गई मेरे कोल 2AD बटा 2PM। दुगना करांगी AD नूं की बन जाएगा AE बन जाएगा। ठीक है, ते 2 टाइम्स करांगी PM नूं, इहनूं PM नूं 2 बार कीता, ये की बन गया PN बन जाएगा। ठीक है जी, ये चीज बन गई यानी ए बी बाय पी क्यू हुण इहदे दुगने दे बराबर भी होएगा। ते फिर आपां कह सकते हैं ये दूजी ते तीजी जिहड़ी इक्वेशन है इहनूं ध्यान नाल देखियो किहड़ी चीज बराबर हैगी है। दूजी इक्वेशन दे विच ए बी बाय पी क्यू बराबर हैगा BE बाय QN दे, इहदे विच ए बी बाय पी क्यू बराबर है AE बाय PN दे। ते आपां कह सकते हैं ये दोनों आपस दे विच बराबर हो जाणगियां ते फर्दर इहदे बराबर हैगी है। ठीक है, देयरफॉर देखो हुण इहदे विच साडे कोल की बराबर आ गया, इहदे विच साडे कोल बराबर आ गया ए बी बटा पी क्यू बराबर हैगा प्रोपोर्शनेट हैगा BE इस साइड बटा QN दे इहदे, ते तीजी चीज AE जिहड़ी हैगी है ए वाली साइड वो बराबर हैगी है P प्रोपोर्शनेट हैगी है PN दे। ठीक है, ते फिर आपां कह सकते हैं ए वाला ट्रायंगल ABE सिमिलर हैगा PQN दे। ठीक है, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल हैगियां ने। हुण मैनू इहदे विच ए पता हैगा, इत्थे मैं एंगल ड्रॉ कर दिंदी हां इहनूं इरेज करके ताकि तुहानूं पता लग जाए। इहनूं ले लो एंगल 1, इहनूं ले लो एंगल 2, आ तुसी एंगल 3 ले लो, आ एंगल 4 ले लो। एंगल 1 ते एंगल 2 आपस दे विच बराबर होणगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हैगियां ने, ए वाली ट्रायंगल इहदे बराबर हैगियां ने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होणगे। ठीक है, ते सिमिलरली आपां ये कह सकते हैं दूजा हिस्सा ट्रायंगल दा ए वाला इहदे बराबर हो जाएगा दूजे हिस्से दे, जिवें आपां ए वाला इहदे बराबर कीता है। तब जब ओ बराबर हो गया ते तीजा एंगल ते चौथा एंगल बराबर हो जाणगे, कह सकते हैं। ते आपां की करांगे इहदे विच एडिंग 4 एंड 5 यानी ए वाली इक्वेशन नूं एड जे आपां देखदे हां इहदे नाल आपां ये कह सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, इहनूं आपां पंजवीं दिंदे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ते एंगल 1 प्लस एंगल 3 जब करोगे पूरा ए एंगल 1 ए एंगल 3 ये पूरा की आ जाएगा एंगल ए, उवें एंगल 2 प्लस एंगल 4 करोगे की आ जाएगा एंगल पी। ठीक है, हुण एंगल्स बराबर ने ते आपां कह सकते हैं ट्रायंगल ABC ते ट्रायंगल PQR दे विच ए एंगल P दे बराबर है। AB जिहड़ा हैगा, ठीक है, ये देखो AB बाय PQ किहदे बराबर हैगा AC बटा PR दे, वो गिवन हैगा इहदे बराबर। ठीक है जी, ये प्रोपोर्शनेट हैगियां ने जो कि सानू गिवन दे विच ही सीगा। ठीक है, देयरफॉर तुसी कह सकते हो बाय ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR केड़ी प्रोपोर्शनैलिटी बाय यूजिंग साइड एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, यह जो एक होर क्वेश्चन आप ट्राई करांगे सॉल्व करना, वो ए वाला हैगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगे चलते हैं 13th वाल। 13th ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ D is the midpoint of side BC यानी ये D हैगा। ठीक है, ये साइड हैगी आ B ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ C, ਇਹ मिड पॉइंट हैगा। ठीक है, such that angle ADC ए वाला ते BAC ए वाला। ठीक है, इनू मैं ठीक करके बनाती हाँ। केड़े दो एंगल हैगे ने, ए वाला एंगल, ठीक है, ते ए वाला एंगल आपस दे विच बराबर ने। आपां नू ये शो करना है भी CA दा स्क्वायर यानी ए वाली साइड दा जिहड़ा स्क्वायर है वो किहदे बराबर हैगा, वो बराबर हैगा CB दिस मल्टीप्लाइड बाय CD ए बराबर। ठीक, हुण किवें करांगे देखो, इहदे विच सब तो पहला गिवन दे विच तुसीं ये सारी गल्लां लिख लूंगे, टू प्रूफ दे विच ये चीज लिखोगे। हुण मैं इत्थे लिखिया प्रूफ। प्रूफ दे विच सब तो पहला तुसीं लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ABC यानी वड्डे वाला ते ADC मतलब ये छोटे वाला ट्रायंगल। ठीक है, एंगल C दोनों विच कॉमन है।
एंगल BAC ए वाला जिहड़ा हैगा ए दे बराबर दिता होया तां दोनों ट्रायंगल जिहड़े ने सिमिलर हो गए बाय ए क्राइटेरिया। हुण AC इहदे विच देखो ए नूं हटा दो, ए इदां करके सी। हुण इहदे विच मैं ये कह सकदी हां AC क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने तां AC बटा DC, ठीक है, इज इक्वल टू BC बटा इधरों की आ जाएगा AC, ठीक। ए दो ट्रायंगल जो सिमिलर ने तां कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट होणगियां। हुण जे तुसी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इनू ए आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय DC, ओही चीज प्रूव करती, ठीक। अगे चलते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन विच दिता होया ए ट्रायंगल आपां यूज करांगे साइड्स AB, ए दिती हुई है AB प्रोपोर्शनेट हैगी है PQ दे, AC प्रोपोर्शनेट हैगी है PR दे, ठीक है, ते मीडियन हैगा AD ओ प्रोपोर्शनेट हैगा PM दे, ठीक है। ते असी प्रूव करना है पूरा ट्रायंगल सिमिलर हैगा ट्रायंगल PQR दे। सेम वही चीज करनी है जो पहले 12वें क्वेश्चन विच कीती सी। AD नूं इदां करके तुसी प्रोड्यूस करोगे सच दैट AD ते AE आपस दे विच बराबर होणगे, ठीक है जी, आ लिखता। उवे ही इधरों भी एक्सटेंड करोगे M नूं सच दैट किस तरीके नाल एक्सटेंड करोगे, ए वाला हिस्सा इहदे बराबर होएगा, AN तक जाएगा, ठीक है। हुण प्रूफ दे विच जे आपां ए वाला क्वाड्रिलेटरल ले लिए ABEC, इहदे विच एक AE डायगोनल है ए वाली ते एक हैगी है BC, एक दूजे नूं बाइसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे ने, कित्थे D ते दो बराबर हिस्सिਆਂ विच वंड रहे ने, तां क्वाड्रिलेटरल जिहड़ा पैरेललोग्राम बन गया क्योंकि ओहदी डायगोनल्स बाइसेक्ट करदियां ने। सिमिलरली ए भी पैरेललोग्राम हो गया, पहला आपां प्रूफ कीता सी। जे पैरेललोग्राम्स ने तां ऑपोजिट साइड्स बराबर होणगियां, कहने का मतलब ए वाली जिहड़ी साइड हैगी आ या आपां कह दिंदे ए वाली साइड इहदे बराबर ते इधरों ए वाली साइड इहदे बराबर, ओही लिखिया। हुण डिवाइड करना है इहदे विच, इस इक्वेशन नूं दूजी इक्वेशन नूं तीजी दे नाल जे तुसी डिवाइड करोगे हो गया BE बटा QN इज इक्वल टू AC बटा PR, ठीक है। हुण मैं इहदे विच की कीता हैगा भी AD बटा PM जिहड़ा हैगा साडे कोल बराबर दिता होया सी ना, ये दिता होया सी क्वेश्चन दे विच, आ देखो AB AC ते AD, इत्थे PQ PR ते PM ये आपस दे विच बराबर क्वेश्चन विच ऑलरेडी दिते हुए सी, ठीक। ते मैं इत्थे की लिखिया भी AD बटा PM ए वाली जिहड़ी चीज हैगी है इनू मैं लिख सकदी हां 2 टाइम्स करके, जे इनू 2 टाइम्स करता 2 टाइम्स AD नू कीता ओ की हो जाएगा पूरा AE आ जाएगा, ठीक है जी। नाल दी नाल मैं ये कह सकदी हां BAE जिहड़ा एंगल हैगा BAE ए वाला जिहड़ा एंगल हैगा ओ बराबर हैगा इहदे QPN दे, ठीक है। हुण देखो इहदे विच दे जे आपां देखदे हां, ये पहली इक्वेशन, ये चौथी ते ये पंजवीं, ठीक है जी। इन्हां विच जे आपां देखिए सिमिलैरिटी की हैगी है AD बटा इत्थे आएगा AB नहीं AD नहीं AB बटा PQ किहदे बराबर हैगा, इनू आपां कह सकते हैं BE बटा QN दे बराबर, ठीक है, ए बराबर। तो फर्दर बराबर हैगा AC बटा PR दे भी कह सकते हो, या तुसी इनू कह सकते हो ए बराबर हैगा AE बटा PN, क्योंकि आपस में सारे बराबर ने, ए आ गया। देयरफॉर जे आपां ट्रायंगल्स की गल करिए, ए वाले ट्रायंगल्स मैं दसदी हां किहड़े वाले, आ देखो इहदे विच ABE ट्रायंगल ए वाला जे मैं लंदी हां ते इहदे विच PQN ट्रायंगल ए वाला लंदी हां, इहदे विच ए कह सकदी हां BAE ए वाला एंगल बराबर हैगा ए वाले एंगल दे, ठीक है जी। ए प्रूफ हो गया, ए साइड्स प्रोपोर्शनेट आ गई, देयरफॉर आपां ए कह सकते हैं भी ए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। उवे ही दूजी साइड वाले ट्रायंगल भी जिवें आपां पहला सिमिलर कीते सी कर सकते हैं, तो ए वाला हिस्सा जिहड़ा एंगल दा ए दे बराबर हो गया। जब ए वाला हिस्सा इहदे विच ऐड करोगे तो ए वाला हिस्सा इहदे विच ऐड करोगे तुहाडे कोल आ जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू QPR। ते जे ए वाला एंगल आपां ये कह सकते हैं पूरा इहदे बराबर हो गया, साइड्स जिहड़ियां ने प्रोपोर्शन विच हैगियां ने, ठीक है। ते आपां ये कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स इहदे विच एंगल A ते एंगल P भी आपस दे विच बराबर हैगे ने,
ठीक है ना। ਤੇ ਆਪਾਂ देयरफॉर ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ SAS ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਿਮਿਲਰ। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है दोनों पढ़ लेना क्वेश्चंस। अगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वें विच दिता होया अ वर्टिकल पोल, पहला आप ड्रॉ कर लेंगे हैं ये विच ट्रायंगल। ठीक है जी, एक ए मैनू ना एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो मैं इनू आप ही ड्रॉ कर दी। ए ट्रायंगल इदां दा, एक होर ट्रायंगल इदां दा। ठीक है, इनू मैं नाम दे दिंदी हाँ ए बी राइट एंगल्ड, सी इनू दे दिंदी हाँ पी एम एन। इन्होंने कहा वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर, ठीक है, मीटर दे विच दिता होया कास्ट शैडो, एदी शैडो पैंदी है इत्थे 4 मीटर दी लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट शैडो, ओदी शैडो पैंदी 28 मीटर। मैनू एदी हाइट नहीं पता कितनी हैगी है, फाइंड द हाइट, इस टावर दी हाइट काढनी है। ठीक है, ये सारा लिखता, मान लो एदी हाइट h मीटर हैगी है, शैडो इन्नी हैगी है। हुण ये दोनों ट्रायंगल दी जे आपां गल करिए ABC ते PMN दी, इहदे विच एंगल C एंगल N दे बराबर है, क्योंकि एंगल हैगा ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ सन, ये दोनों बराबर होंगे। एंगल बी ते एंगल एम बराबर ने, दोनों 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल जिहड़े ने सिमिलर हैगे ने बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। देयरफॉर मैं कह सकती हूँ ए बी बटा पी एम इज इक्वल टू बी सी बटा एम एन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स ने सिमिलर हैगे ने, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैगे ने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो गई। तो वैल्यूज पुट कर दो, ए बी दी वैल्यू PM H है, BC दी वैल्यू H दी वैल्यू काट लोगे, वही हाइट हैगी है टावर दी। अगे हैगा 16th क्वेश्चन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे, एक ਇਹ ਤੇ एक होर आह। ठीक है जी, थोड़ा जिहा इधर कर दिंदी हां ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइनस ड्रॉ करनी है ते एक इदां करके। ठीक, क्वेश्चन दे विच दस्सिया गया है AD एंड PM, यानी इत्थे आएगा A D P M, ये दो हैगियां ने मीडियंस, मीडियंस यानी ए वाला साइड ए दे बराबर, ए वाली साइड ए दे बराबर ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने। आपां की प्रूव करना है भी AB बटा PQ इज इक्वल टू AD ए दे बटा PM दे बराबर। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। हुण किवें करांगे, पहला प्रूफ दे विच दोनों ट्रायंगल सिमिलर ने, यानी AB बटा PQ इज इक्वल टू कह सकती है ए वाली साइड जिहड़ी हैगी है BC बटा QR इज इक्वल टू AC बटा PR, ये दिता होया। ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर ने, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ते जे इदां दा केस हैगा तां ए वाला एंगल पूरा ए दे बराबर होएगा, दो ट्रायंगल सिमिलर ने, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। बी एंगल जिहड़ा ए वाला वो ए दे बराबर होएगा ते इधर जिहड़ा सी वाला हैगा वो आर दे बराबर होएगा। हुण डी जे मिड पॉइंट है तां BD बराबर होएगा DC दे, यानी BD जिहड़ा हैगा वो हाफ ऑफ BC कह सकते हैं। उवें ही QM ते MR बराबर है तो QM हाफ ऑफ QR हो जाएगा। ठीक है, हुण सानू ए पता हैगा भी AB बटा PQ बराबर हैगा दिता होया BC इस साइड बटा QR दे। हुण इहदे विच ए जिहड़ा BC हैगा, ठीक है, इहनू मैं लिख सकदी हां 2 टाइम्स BD, 2 उधर चला जाएगा, ए लिखता। उवें ही जिहड़ा QR हैगा उहदी थां ते लिख सकदी हां 2 टाइम्स QM, है ना, 2 दे नाल 2 दी कटिंग होगी, AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM लिखिया जा सकता है। देयरफॉर मैं कह सकती हूँ एंगल इहदे विच ABD ए वाला इज इक्वल टू PQM, ए गिवन हैगा। ठीक है, जे ए गिवन हैगा, साइड्स प्रोपोर्शनेट हैगियां ने, दो साइड्स ओदे विच एक एंगल जिहड़ा हैगा वो बराबर हैगा। जे ए ट्रायंगल ले रहे हैं तो ए ट्रायंगल, ये देखो ए वाला ट्रायंगल, किहड़े वाला ट्रायंगल लेता है इस केस दे विच मैं वो दस दिंदी हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं लेता है A
B ਤੇ C ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ PQR ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਸਾਈਡ ਵੈਲੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ AB ਬਟਾ PQ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BD ਬਟਾ QM, ਸੌਰੀ BD है, BD बटा QM ਦੇ ਬਰਾबर, A वाली साइड बटा A वाली साइड इज इक्वल टू दिस बटा दिस, ठीक है। नाल दी नाल A वाला एंगल A दे बराबर, देयरफॉर SAS क्राइटेरिया तो आप कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स जेडे ने सिमिलर हो गए, ठीक है। देयरफॉर SAS दे नाल जे ट्राइंगल सिमिलर हो गए दैन AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM कह सकती हैं, यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AD बटा PQ, sorry AB, this AB बटा PQ can also be equal to AD बटा PM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैगे ने, हैंस मैं प्रूफ करता, ठीक है जी। अब प्रूफ करता कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होणगियां जे ट्राइंगल सिमिलर हैगे ने। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ABD, ਠੀਕ ਹੈ, A ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ PQM, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।